السلام علیکم. آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. آغاز میں آپ کو بتائیں مالیاتی ضمنی بل 2021 قومی اسمبلی میں پیش. اپوزیشن کا شدید احتجاج. بل کی کاپیاں پھاڑ دی. اسپیکر نے رولنگ دی کہ یہ بل قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے سپرد نہیں ہوگا. بل پر 1 ہفتے تک بحث کرائی جائے گی. اجلاس میں الیکشن تیسری ترمیم کے آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی. اپوزیشن ارکان نے برقی توانائی پیداوار کے حوالے سے آرڈیننس کی مدت میں توسیع کی تحریک پر ووٹنگ میں اپوزیشن کے صرف 3 ارکان نے مخالفت میں کھڑے ہوئے. شہباز شریف، بلاول بھٹو اور آصف زرداری آج کے اس اجلاس میں شریک نہیں تھے. وزیر خزانہ شوکت طریق نے 360 ارب روپے کا مالیاتی ضمنی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا. All those in favor of the resolution میں سے آئے, all those سے no. I think I have it facing the resolution adopted. مالیاتی ضمنی بل کے خلاف اپوزیشن نے سخت شور شرابہ کیا اور بل کی کاپیاں پھاڑ دی. اسپیکر اسد قیصر اپوزیشن کو نظم و ضبط کی تلقین کرتے رہے. آپ اپنی سیٹ پہ چلے, میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ جائیں اس سے بات کریں, ادھر سے آپ ادھر سے جائیں بات کریں. اسپیکر نے رولنگ دی کہ قواعد و ضوابط کے تحت یہ بل فائنانس کمیٹی کے سپرد نہیں ہوگا. خواجہ آصف کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ بل پر بحث کے لیے اپوزیشن کو بھرپور موقع ملے گا. میں اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کراؤں گا اور وہ ہم ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ طے کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, نہیں میں نے آپ کو شارٹ ٹائم دے دیا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جو آرڈیننسز ہے اس کے بارے میں میں نے پوری رولنگ دے دی ہے. آپ رولنگ کو دیکھ لیں, جو میرے پاس جو قانونی رولنگ ہے میں نے دے دی ہے. تیسری جی خواجہ صاحب پلیز وائنڈ اپ کر لیں کیونکہ میں آپ کو پورا بات کر دوں گا. یہ ڈیفینس منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ میرا منہ بند کریے. نہیں وہ کوئی اور میں آپ فکر نہ کریں. نہیں اگر یہ مجھے ڈائریکٹ حکم کرتے ہیں میں ویسے بیٹھ جاتا ہوں. تھینک یو جی. الیکشن تیسری ترمیم کے آرڈیننس میں 120 دن توسیع کی قرارداد کی منظوری پر اپوزیشن نے احتجاج کیا. ایک ایکسپائرڈ چیز کو آپ ایکسٹینڈ کس طرح سے کریں گے؟ یہ تو جیسے کوئی مردہ شخص ہو, اس کو قبر سے نکال کے آپ اس میں سانس پھونک رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا. یہ ان نیچرل چیز ہے, یہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل چیز ہے. نوید قمر کے اعتراض پر بابا روان نے کہا آرڈیننس بر وقت اسمبلی میں فائل کر دیا تھا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آرڈیننس ود ان ٹائم ہم نے فائل کر دیا تھا اسمبلی میں. اب جب ظاہر ہے الیکشن ایکٹ جو پچھلا میں نے پیش کیا اس کی طرح سے جب اس کو لایا جائے گا جس وقت بھی ایجنڈے پہ, اس وقت یہ کنسیڈر ہوگا. سو دیر از ایبسولوٹلی نو پروسیجرل لیپس ان دی پروسیجر وچ از بینگ اڈاپٹیڈ بائی دی چیئر. اپوزیشن نے برقی توانائی پیداوار کے حوالے سے آرڈیننس کی مدت میں توسیع کی تحریک پر ووٹنگ کو چیلنج کیا. Sir, I challenge the vote. Count should be made. جس پر اسپیکر نے باقاعدہ ووٹنگ کرائی تو مخالفت کرنے والوں میں اپوزیشن کے صرف 3 ارکان کھڑے ہوئے. اپوزیشن جماعتوں کے اہم لیڈران شہباز شریف، بلاول بھٹو اور آصف زرداری اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے. عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ گرایا جا رہا ہے. پاکستان کو نہ بیچیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی حکومت پر تنقید. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 3 سال لوٹ مار کی اجازت دی. آپ نے عوام سے جھوٹ بولا. آج پوری قوم شرمسار ہے. معاشی خود مختاری بیچی جا رہی ہے. حکومت عوام پر مزید ظلم ڈھائی دی جا رہی ہے. تنخواہ دار طبقہ کس طرح گزارا کرے گا؟ پاکستان کے عوام کی زبان بندی کر کے آپ جو ہے پاکستان کی معاشی خود مختاری بیچ رہے ہیں. آپ نے 3 سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی. یہ اس حکومت کی فیلئر ہے. جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے 3.5 سال. عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے مہنگائی کی کہ آپ نے ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام پہ اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں. یہ تنخواہ دار کا طبقہ جو ہے کس طرح سروائیو کرے؟ مودی کو گھر بلانے والے ہمیں سبق دے رہے ہیں. اپوزیشن قوم کو ڈرا رہی ہے. اسد عمر کا قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کو جواب. کہا اپوزیشن خود اپنی تعریفوں میں لگی ہوئی ہے. موجودہ حکومت کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے. اپوزیشن نے طوفان برپا کیا کہ حکومت جا رہی ہے. انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے صرف 3 ممبر کھڑے ہوئے.
शांति का। जो मोदी को, जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। बेचारों को खुद ही इश्तिहार निकालने पड़ते हैं, खुद ही अपनी तारीफें करती हैं। हम कोविड पे बाद काम करते हैं, दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, दुनिया तारीफ करती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? हुकूमत अवाम से इंतकाम लेना चाहती है, हुकूमती तरीक़ेकार नाकाबिले बर्दाश्त है। बताया जाए मुल्क में महंगाई है या नहीं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कानून साजी सिर्फ अवाम के लिए है, मौजूदा हुकूमत के पास कोई तजर्बा नहीं, हुकूमत की अवाम के हाथों दुर्गत बनने जा रही है। हम ये कहते हैं कि हम अपोजिशन है, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें, हैं तो आप भी जवाब दें, लेकिन शायद इनको समझ लगी है कि अब अवाम के, जो पाकिस्तान के अवाम इनके साथ नहीं, तो ये उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। हुकूमत वक्त का जो तौर तरीका है वो इतना ऑब्जेक्शनेबल है, वो इतना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मुल्क में महंगाई है या नहीं? जब ये पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएंगे मुझे खौफ आ रहा है, लेकिन खुदा की कसम जो आपकी दुर्गत बनने जा रही है आपको फिक्र ही नहीं है। आप अभी अपने हलकों में नहीं जा सकते। असद उमर ने कोई जवाब दिया, किसी सवाल का जवाब दिया? यकीनी तौर पर जिस किसी ने भी उनकी बात सुनी है उसको मायूसी हुई होगी। आईने पाकिस्तान में उसका एक तरीका कार दर्ज है, तो वो तो या तो फिर आपको 2/3 मेजोरिटी यहाँ चाहिए होगी। सवाबी के बल्दियाती इंतखाब पर रुकन कौमी असम्बली मौलाना असद महमूद ने स्पीकर असद कैसर को चैलेंज देते हुए कहा, स्पीकर ने हल्के के लोगों को बल्दियाती इंतखाब में खरीदने की कोशिश की। स्पीकर असद कैसर ने कहा, आप गलत बात कर रहे हैं, आपकी अपनी पोजीशन कमजोर है। मौलाना असद महमूद ने कहा, आप वो जगह बता दें जहां हम हुकूमत से सवाल कर सके। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। आपने लोगों को पैसों से खरीदने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, मैं अपनी ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आप जो है ना जनाब स्पीकर कर रहे हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ, आप आज भी नहीं जीते और आप कल भी नहीं जीतेंगे। मैंने कबूल किया था जनाब स्पीकर। गपशप के लिए एक बात करते हैं जनाब स्पीकर, आपकी अपने इलाकों में पोजीशन अच्छी नहीं है जनाब स्पीकर। 2.5 अरब रुपए और 70 करोड़ की लालच गपशप नहीं होती। तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपको जवाब देना होगा। एक मिनट आपके साथ मेरा चैलेंज है। जवाब देना होगा आपने। मौलाना एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूँ। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूँ जनाब स्पीकर, ऐसे नहीं चलेगा। ये साबित कर दिया स्पीकर, ऐसे नहीं चलेगा। हर जगह शिकस्त मिली है। आपको मेरी बात सुनना होगी। कौमी असम्बली में शोर शराबा, हंगामा आराई। बात यहां नहीं रुकी बल्कि पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी और पीटीआई के रुकन गजाला सैफी में हाथापाई भी हो गई। शगुफ्ता जमानी ने थप्पड़ दे मारा, गजाला सैफी के हाथ पर भी चोट लगी। रेहान शेख की रिपोर्ट देखते हैं। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा, स्पीकर डाइस के सामने अपोजिशन अरकान का एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल की कापियां फाड़ दी। हुकूमती मेंबरान भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की खातून रुकन कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी और हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की रुकन गुजाला सैफी उलझ पड़ी। शगुफ्ता जमानी ने गुजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा, जिस पर मेंबरान कौमी असम्बली दोनों खवातीन के दरमियान खाइल हो गए। गुजाला सैफी गुस्से से बाहर निकली और बोली कि इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए, ये रुकन बनने के काबिल नहीं। ये इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ एमएनए बनने के काबिल नहीं है। लड़ाई के दौरान गुजाला सैफी के हाथ पर भी चोट लगी।
मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की मिनी बजट पर ब्रीफिंग, बताया 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की, 70 अरब रुपए की टैक्स छूट पे लग्जरी आइटम शामिल थे। ज़री अद्वियात, खाद और ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया। IMF चाहता है हर चीज पर टैक्स लगाया जाए। आम आदमी के लिए 2 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की। 2 अरब रुपए टैक्स से कौन सी महंगाई आएगी? अपोजिशन ने बिल से महंगाई बढ़ने की अफवाहें फैलाई। ये सारा जो इस वक्त जो बातें चल रही हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो ये सारा जो 700 अरब रुपए का जो बिल था उसको हमने 343 बिलियन पे लेके आ गए, ताकि ये आज अबहाम ही खत्म हो जाए कि ये टैक्सों का बोझ लोगों पे पड़ेगा और ये महंगाई होगी। 343 अरब रुपए के एग्जम्पशन जो हैं वो हटाई गई हैं। फार्मा के ऊपर 160 अरब, रेस्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो वो तकरीबन 71 अरब। 70 अरब रुपए के ऊपर अगर हम देखें तो लग्जरी आइटम्स हैं इसमें। कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जम्पशन निकाल रहे हैं। IMF ने ये कहा कि यार फिर तुम पैसे कैसे और बीच में बढ़ाओगे? तो हमने कहा यार इसका मकसद पैसे बढ़ाना नहीं है। जब उनके साथ लड़ाई हुई तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने बेसिकली उनसे कहा कि ये हम नहीं करेंगे। पहले तो इनकम टैक्सेस के ऊपर हमने कहा हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगने देंगे। कौन सी ऐसी चीजें जिसको हमने डिफेंड किया? फूड आइटम्स है, सारे फूड आइटम्स है। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, इसको हमने नहीं, इस पे सेल्स टैक्स लगने दिया। फर्टिलाइजर तो इसमें भी नहीं लगने दिया। वजीर खजाना कहते हैं सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मिनी बजट से टैक्सेस का कितना बोझ पड़ेगा ये आवाम खुद अंदाजा लगा ले। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज है, जिनसे 350 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई GST छूट खत्म करने की तजवीज है। इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स और साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज भी शामिल है। जीरो रेटेड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने से 9.5 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। बेकरी आइटम्स, ब्रांडेड फूड आइटम्स और पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेड मशीनरी पर GST छूट वापस लेने की तजवीज है। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगाने और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस टैक्स में 100% इजाफे की तजवीज है। 1000 सीसी से जायद गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और गैर मुल्की टीवी सीरियल्स और ड्रामों पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज भी शामिल है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं अपोजिशन ने ऐवान को मछली मंडी बना दिया, तूफान बदतमीज मचाए रखा। अपोजिशन का कोई लीडर वहां मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो लापता थे। नून लीग 4 बार IMF के पास गई। पीपल्स पार्टी ने IMF से बड़ा कर्जा लिया। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला। जो आज उन्होंने रवैया अख्तियार किया पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान को मछली मंडी बनाई रखा, तूफान बदतमीजी की रखी और लीडरलेस ऑपोजिशन थी। कोई उनका लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। आज शहबाज शरीफ भी लापता थे और बिलावल भी लापता थे। 9 बार जो है वो पीपल्स पार्टी IMF के पास गई, 4 बार जो है वो PMLN IMF के पास गई। बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो सबसे बड़ा IMF का जो है वो 9 अरब डॉलर का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने जो है वो लिया हुआ है। आम आदमी के ऊपर जो है वो इसका किसी किस्म का जो है वो बोझ ना डाला जाए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक इस तासुर को मुस्तरद किया कि स्टेट बैंक आलमी मालियाती इदारों के ज़ेरे असर चला गया। कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक इंतहाई जरूरी थी। हुकूमत स्टेट बैंक के तमाम इख्तियारात स्टेट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तफवीज करेगी, जबकि बोर्ड मेंबरान की नामजदगी और तैनाती का हक हुकूमत के पास होगा। हुकूमत वक्त स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी। स्टेट बैंक पूरी तरह से पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को जवाबदेह होगा। फिस्कल और मॉनेटरी मामलात बाहमी मशवरे से हल किए जाएंगे। इत्तेहादियों के साथ हुकूमती अरकान ने भी मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी के इजलास में MKM रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया कि महंगाई का तूफान आएगा। वज़ीरा ने शौकत तरीन की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म बोले, मेरी हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे मुल्क की सालमियत मुतासिर हो। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टी इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारत की। शौकत तरीन ने मालियाती तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी।
वजीर खजाना को सख्त सवालात का सामना, डॉलर 180 रुपए से ऊपर चला गया। सलीम उर रहमान का शिकवा। शौकत तरीन ने बताया कि वजह अफगानिस्तान है, आइंदा दिनों में कंट्रोल कर लेंगे। रमेश कुमार ने IMF शराइत और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर तशवीश का इजहार किया, जिस पर शौकत तरीन ने इस तासर को मुस्तरद कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान बोले, मेरी हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे मुल्की सालमियत मुतासिर हो। MQM ने मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मिनी बजट को महंगाई का तूफान करार दिया। वफाकी वज़रा ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इत्मीनान का इजहार किया। आम आदमी पे बोझ पड़ेगा वो सिर्फ 2 बिलियन का पड़ेगा और बाकी जो हैं वो आम आदमी पे नहीं पड़ेंगे। बेसिकली उसने कहा कि 17% ये जो हैं जो आवाम पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। महंगाई से वजीर आजम आपसे पहले बात कर चुके और महंगाई के लिए आवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए उन्होंने पहले भी इकदाम किए और आपको पता चल जाएगा कि ना कोई चक्की होगी और ना कोई महंगाई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के अरकान पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक नहीं हुए। सनतकार भी मिनी बजट से परेशान हैं। कहते हैं टैक्स रियायतें खत्म होने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। सफदर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मिनी बजट से सनतकार भी परेशान, ताजिर बिरादरी ने भी मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। सनतकार कहते हैं टैक्सों की छूट खत्म होने से महंगाई में इजाफा होगा। टैक्सेशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशन। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो एग्जम्पशन खत्म करेंगे फॉर श्योर इससे महंगाई तो आएगी। ये महंगाई जो है खुद प्रोड्यूसर को भी अफेक्ट करेगी, लोगों को बहुत तकलीफ होगी। आवाम की या कम आमदनी वाले लोगों की कोई सैलरी बढ़ नहीं रही है। जो एक्सपोर्टर है उसको फर्क नहीं होगा क्योंकि उसका इसमें कोई ऐसा टैक्स नहीं लग रहा जो एक्सपोर्ट बिजनेस पे हो। ताजिर बिरादरी का कहना है कि 3.5 साल से सुन रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, लेकिन कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ना एक जबरदस्त पाकिस्तानी कौम के ऊपर 300 अरब रुपए का जो बोझ लादा जाएगा तो उसमें एक छोटे से छोटा बंदा जो है वो और ज्यादा पिस जाएगा। सनतकारों का जहां तक ताल्लुक है उनकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। हम नहीं संभाल पाएंगे इस महंगाई को और ये महंगाई मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को ले डूबेगी। कहते हैं कि मतलब इंशाल्लाह अगले 6 महीने ठीक होंगे। वो अगले 6 महीने कब आएंगे मुझे नहीं पता। 3.5 साल हो गए। कारोबारी अफराद का कहना था महंगाई से आम आदमी मुतासिर होगा, खाम माल की दरामद महंगी होने से सनतकार भी मुतासिर होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा। मुतादिद ममालिक में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट होने लगे। साथ अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव भी तेज हो गया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटानिया, अर्जेंटीना और चीन में रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब में मास्क पहनने और समाजी फासला अख्तियार करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी गई। अमेरिका में कोरोना के हमले मजीद तेज, यौमिया केसेस की शरह 2 लाख से तजावुज कर गई। फ्रांस में भी सूरत हाल काबू से बाहर, हर 1 मिनट में 2 अफराद वायरस का शिकार होने लगे। रिकॉर्ड 2 लाख केसेस सामने आ गए। बरतानिया में मजीद 1,83,000 रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। इटली में भी रिकॉर्ड 98,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। अर्जेंटीना में भी एक ही रोज में सबसे ज्यादा 42,000, जबकि तुर्की में अप्रैल के बाद रिकॉर्ड 36,600 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। चीन में भी कोरोना के बाढ़ जारी हैं। एक ही रोज में मजीद 156 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर सऊदी अरब में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाद मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले के साथ नमाज की अदायगी और तमाम SOPs पर अमल करना होगा। दुबई के बुर्ज अल अरब को दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का एहसास हासिल है। मसनूई जजीरे पर कायम बादबानी कश्ती नुमा इस खूबसूरत होटल के अंदर क्या कुछ है, ये इस रिपोर्ट में जानते हैं। बुर्ज अल अरब दुनिया के बुलंद तरीन होटल्स में से एक है। इससे पहले 7 स्टार होटल होने का एजाज भी हासिल है। दुबई के फेस्टिवल सीजन में किया गया इस होटल की सैर का खुसूसी एहतमाम। जुमेरा बीच से 280 मीटर दूर मसनूई जजीरे पर कायम इस होटल पहुंचने पर अमाराती मेजबान रिवायती अंदाज में इस्तकबाल करते हैं।
होटल के अहम तरीन हिस्से रॉयल सूट की सैर को जाएं तो मखसूस लिबास पहने बटलर दरवाजा खोलते हैं, जहां मुंतजर हैं पुरआसाइश जिंदगी के हैरान कर देने वाले मनाजिर। सोने की टाइलों से मुरक्का शावर, 30 मुख्तलिफ किस्म के मार्बल्स, 21,000 सवार्ट्स की क्रिस्टल से सजी छत और बहुत कुछ। 380 मीटर ऊंचे बुर्जुल अरब होटल की सैर का वक्त सुबह 9:30 से रात 8:30 बजे तक रखा गया है। आयशा शेख, आज न्यूज, दुबई।